Okay, praise the Lord. Happy to see you again. Yeah. Praise the Lord. Let us turn to Mark chapter 1, verse 35. I'll read for you. Very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where he prayed. Amen. 2026 direction of our alliance is that build the watchtower of the kingdom of God. Lecture 1, the title is Build the Watchtower of Prayer That Saves Me. Dear pastors and leaders of India, by the grace of God, we were able to begin 2025 with answers, but honestly, last year was not an easy year. Many nations faced instability economically, socially, spiritually. There was a shaking. Our churches also faced many difficulties. Personally, many of us felt limits. Yet one thing was very clear, though we cannot fully explain it, there was a power poured from above, a heavenly strength. Because of that fundamental power, we did not collapse. When storms come, trees with deep roots go deeper, trees with shallow roots fall down. I thought about the early church. They faced prison, rejection, persecution. Because of Jesus, they lost jobs and social position. Okay. So praise the Lord, Muktani. Oh, welcome. Thank you. I was just on way. Yep. Okay. So आज का जो विषय है वो ये है कि परमेश्वर के राज्य के लिए वॉच टावर को बनाएं। ठीक है, परमेश्वर के राज्य के लिए वॉच टावर को हम बनाएं। पास्टर जी कह रहे हैं कि जब हम प्राचीन कलीसिया को देखते हैं तो उसने बहुत सा सताव, विरोध, समस्याओं का सामना किया और वर्तमान में हम लोग भी ऐसी ही परिस्थितियों का सामना अपने जीवन में कर रहे हैं। Okay, I thought about the early church. They faced prison, rejection, persecution. प्राचीन कलीसिया ने जेल, प्रताड़ना और लोगों से बहुत ही सताव का सामना किया। Because of Jesus, they lost jobs and social position. सताव के कारण उन्होंने अपनी नौकरी और समाज के स्तर को भी खो दिया। But through persecution, true disciples gathered. और सताव के द्वारा ही सच्चे जो चेले होते हैं वो तैयार रहे। So persecutions are also a kind of answer. Yeah, persecutions also is a kind of answer. सताव भी हमारे लिए एक तरह की हमारे लिए एक चेतावनी है। The church began not with comfort, but with covenant. कलीसिया
एक आराम जीवन के साथ नहीं, लेकिन बड़े ही संघर्ष के साथ बढ़ती है। Uh, when difficulty comes, those with wrong motives run away. जब समस्या आती है तो हमारे जीवन के जो व्यक्तिगत लक्ष्य होते हैं वो दूर भाग जाते हैं, But true disciples stake their lives. लेकिन जो सच्चे चेले होते हैं वो इसमें स्थिर रहते हैं। So I realized God was giving us a correct beginning. सो फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि परमेश्वर ने हमें सही शुरुआत किया था। Now in 2026, our direction is clear. 2026 के लिए हमारा जो दर्शन है वो बिल्कुल स्पष्ट है। According to Acts chapter 1, verse 3, build the watchtower of the kingdom of God. प्रेरितों का काम 1:3 के आधार पर परमेश्वर के राज्य के लिए वॉच टावर को बनाना। The resurrected Lord spoke about the kingdom for 40 days. और पुनरुत्थान यीशु मसीह ने 40 दिन तक इसके बारे में बात किया। Yeah, there is the mission for his disciples and also our mission. और उसके चेलों के लिए और हमारे कार्य के लिए एक मिशन है। And today, the first message, build the watchtower of prayer that saves me. आज का जो पहला सत्र है जिस विषय में हम सीखने जा रहे हैं वो है प्रार्थना का वॉच टावर बनाओ जो मुझे बचाता है। We can see Jesus' daily rhythm as the model. और इसमें हम हमारे जीवन में यीशु मसीह को एक नमूने के तौर से देख सकते हैं। We can find in Mark 1:35, before ministry, Jesus prayed at the dawn. और हम मरकुस रचित सुसमाचार 1:35 में इसको देख सकते हैं कि सेवा करने से पहले सुबह सुबह प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। Jesus began his day before the Father. अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर के सामने उन्होंने किया। The early morning, still dark, solitary place, prayer, pastors, this is not optional. हम ये देखते हैं सुबह सुबह एकांत स्थान पर वो प्रार्थना करने जाते हैं। मेरे पासवानों में आपको बताना चाहता हूं कि ये हमारे लिए विकल्प नहीं है, This is foundation. ये एक बुनियाद है। Before meeting people, before touching your phone, before planning ministry, stand before God. मेरे प्रियो, अपने फोन को छूने से पहले, सेवा शुरू करने से पहले आपको और मुझे अपने परमेश्वर के साथ समय बिताना जरूरी है। Morning is not easy. सुबह का समय आसान नहीं होता है। I'm not a natural early riser morning person. और मैं सुबह का व्यक्ति हूँ। But spiritual leader, inner margin, is born in the early time with God. और वो कह रहे थे कि इसमें मैं नहीं हूँ, जो मतलब सुबह नहीं उठ पाता हूँ, लेकिन जो आत्मिक लोग होते हैं वो सुबह परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं। When you receive grace early, you gain spiritual margin. जब आप सुबह अनुग्रह को प्राप्त करते हैं तो आप आत्मिक उन्नति को पाते हैं। And margin is power. और उसी समय में आपके लिए अनुग्रह में ही सामर्थ है। In the Bible, Jesus is never described as rushing in anxiety. और हमने बाइबल में कभी भी नहीं देखा कि यीशु मसीह चिंता में है। He walked with peace. वो जहां कहीं भी गया बड़ी शांति के साथ गया। But when necessary, he acted decisively. लेकिन जब
जरूरत पड़ी तो वो बड़े स्पष्टता के साथ कार्य को किए। Why? क्यों? Because every turn he received strength. क्योंकि हर एक जगह उन्होंने सताव का और विरोध का सामना किया। If we want to save India, we must first save our dawn. अगर आप और मैं भारत को बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने सुबह को बचाना है। Yeah. And second, we can find in Mark 1, verses 38 to 39, Jesus filled the ministry at the daytime. दूसरी बात, यीशु मसीह के हम सेवकाई क्षेत्र को देख सकते हैं। During the day, Jesus went to the field, he preached the gospel. अब देखिए, सुबह के समय वो प्रार्थना में गया, दिन के समय वो सुसमाचार प्रचार करने गया। He cast out demons, he healed the sick. उसने दुष्ट आत्माओं को निकाला और बीमारों को चंगा किया। Prayer at dawn produced power in the field. अब देखिए, सुबह की प्रार्थना में सेवकाई क्षेत्र में सामर्थ को दिया। Ministry without prayer becomes human effort. और सेवकाई में प्रार्थना होना जरूरी है। बिना प्रार्थना के हम मनुष्य अपना प्रयत्न करते रहते हैं। Prayer without mission becomes isolation. बिना मिशन के प्रार्थना बिल्कुल अलग हो जाती है। Jesus had both. यीशु मसीह के जीवन में दोनों थे। And also in Mark 6, verse 46, we can find Jesus' prayer after ministry at night. और तीसरा भाग हम मरकुस 6 के 46 में पा सकते हैं, जिसमें सेवकाई के बाद यीशु मसीह रात को प्रार्थना करते हैं। After feeding the 5,000, after intense ministry, Jesus went up the mountain to pray. 5,000 लोगों को खिलाने के बाद, बड़ी अच्छी सेवकाई करने के बाद प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर जाते हैं प्रार्थना करने के लिए। Even after success, he prayed. देखिए, सफलता प्राप्त करने के बाद भी वो प्रार्थना करता है। हालेलुया। Even after miracles, he prayed. और जो भी चमत्कार उसने किए उसके बाद भी उसने प्रार्थना को किया। Yeah, even after every ministry, he prayed. सेवकाई में जिस भी प्रकार के सेवा को उसने किया, वो उसके बाद प्रार्थना करता था। Why? क्यों? Because power must be continually refilled. क्योंकि जो जो सामर्थ है उसको निरंतर प्रकट होना जरूरी है। Pastors burn out not because of ministry, but because of lack of refill. और पास्टर्स लोग सेवकाई में इसलिए नहीं हार जाते या थक जाते हैं सेवकाई के कारण, लेकिन भय के कारण वो ऐसा करते हैं। Now let's move on to main messages. आइए हम मुख्य भाग की ओर चलें, मुख्य संदेश की ओर चलें। I want to talk about the Watchtower of Prayer. I मैं call that Summit Club. मैं आपके सम्मुख अ, प्रार्थना के वॉच टावर के बारे में बताना चाहता हूं, जिसे मैं कहता हूं समर्पण का क्लब। We should make the vessel of answers. Five. हमें हमें उत्तर का एक बर्तन बनाना है। They are 5 a.m., 5 powers, 5 vessels. 5 बजे 5 सामर्थ, 5 बर्तन। God has begun answers. परमेश्वर उत्तर देता है। Now we must prepare the vessel to contain them. अब हमें उस बर्तन को तैयार करना है ताकि वो उसमें बने रहे। I suppose something practical
There is summit time. कुछ कुछ व्यवहारिक बात जो होती है वो एक समर्पण का समय होता है। Yeah, I set aside for prayer the early morning, 5 a.m. और मैं अपने आप के लिए मैंने एक समय 5 बजे सुबह का प्रार्थना के लिए अलग किया है, Focused prayer. ताकि प्रार्थना पे मेरा ध्यान हो। At the time, I'm building 5 vessels every day. और उस समय मैं प्रतिदिन 5 बर्तनों को बना रहा हूं। First, पहला first vessel, meditation that saves the spirit. पहला वो मनन जो आत्मा को बचाता है। Through that, we can receive spiritual power. उसके द्वारा हम आत्मिक सामर्थ्य को पाते हैं। First of all, uh, let us look at the Lord's Prayer. आइए हम प्रभु की प्रार्थना को देखें। From Gospel of Matthew, chapter 6, verse 9, Jesus said, मत्ती 6:9 में यीशु ने कहा, "This then is how you should pray." इस तरीके से तुम्हें प्रार्थना करनी है। So let us start with the prayer Jesus taught. आइए जो प्रार्थना यीशु ने हमको सिखाई है उसके अनुसार हम शुरू करें। When we pray the Lord's Prayer slowly and deeply, the Holy Spirit fills us. जब हम प्रभु की प्रार्थना धीरे से करते हैं तो परमेश्वर का कार्य शुरू होता है। While I get up, I'm praying the Lord's Prayer every day. जब मैं सुबह उठता हूँ प्रतिदिन तो मैं प्रभु की प्रार्थना को करता हूँ। I can meditate on that prayer slowly and deeply. धीरे धीरे फिर मैं सुबह की प्रार्थना करता हूँ। And then I can feel Jesus' heart and his intention. फिर मैं यीशु मसीह के हृदय और उसके इरादे को महसूस करता हूँ। And the Holy Spirit touch my heart. और फिर पवित्र आत्मा मेरे मन को छूता है। And I'm confessing Christ clearly. और फिर मैं मसीह को पूरी तरीके से अंगीकार करता हूँ। You are the Christ, the true King who broke Satan's power. आप मसीह सच्चे राजा हैं जिसने शैतान की सामर्थ को तोड़ दिया है। You are the Christ, the true priest who finished sin. आप वो सच्चे मसीह हैं जिसने पाप को नाश कर दिया है। You are the Christ, the true prophet who opened the way to meet God. आप वो सच्चे भविष्यवक्ता हैं जिसने हमारे लिए परमेश्वर के रास्ते को खोल दिया है। And I pray for the kingdom of God to come upon. मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर का राज्य मुझ पर आए। Upon my church, my family, my nation, the nations. मेरी कलीसिया, मेरे परिवार और सभी राष्ट्र पे, Especially upon India. विशेषकर भारत पे। आमीन। And you pastors and your और church. आप प्रभु के सेवकों और कलीसियाओं पर। Yeah. Amen. And I'm praying for filling of the Holy Spirit in mind, heart, body, every cell. मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके बुद्धि, दिमाग और मन में स्थापित हो। Now, this brings fundamental peace. और ये एक आत्मिक मानसिक शांति को लेकर आती है। And I have the meditation time with the Bible and the pulpit message and prayer journal. सो जब मैं अपना मनन करता हूं तो मैं अपनी बाइबल, प्रार्थना का
प्रेयर जर्नल के साथ बैठकर मनन करता हूँ। I ask 3 questions daily. मैं 3 सवालों को रोज पूछता हूँ। Who is God? परमेश्वर कौन है? What is God saying to me? परमेश्वर मुझसे क्या कह रहा है? What must I practice today? आज मुझे क्या अभ्यास करना है? And then I'm writing the answers. और फिर मैं उसके उत्तरों को लिखता हूँ। And writing organizes revelation. और फिर मैं इसको सही तरीके से ऑर्गेनाइज करता हूँ। Unwritten grace evaporates. कैन यू रिपीट मास्टर? Unwritten grace evaporates. और फिर परमेश्वर के अनुग्रह को मैं उस लिखित पे मांगता हूँ। This is the first vessel. और यही मेरा पहला अंगीकार है। And second vessel is to save the brain, and then I पहला can receive intellectual power. सब वो पहला बर्तन था। अब दूसरा बर्तन जो है वो उनका है कि दिमाग को बचाना। दिमाग को बचाना मतलब Genesis chapter 2 verse बुद्धिमान की 7. प्रार्थना करना। Genesis उत्पत्ति 2 chapter का 2 7। verse 7, God breathed life into Adam. उत्पत्ति 2 का 7, परमेश्वर ने आदम के जीवन में श्वास फूका। And breath is life, energy. सांस में जीवन होता है, ऊर्जा होती है। Breathing prayer brings healing. अगर हम ब्रीथिंग प्रेयर यानी सांस से प्रार्थना करते हैं तो ये चंगाई को लेकर आती है। There are 3 steps. इसमें 3 मुख्य बातें हैं। First is emptying. पहला है खालीपन। When we exhale, we move unbelief. जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये हमारे तमाम जो संदेह होते हैं उन्हें बाहर निकालती है। And reject dark thoughts. और फिर जो अंधकार के थॉट सोच हमारे जीवन में होती है उन्हें बाहर कर देती है। Release toxic stress. और जब हम सांस को लेते हैं तो फिर तमाम जितने भी स्ट्रेस हम जीवन में लेते हैं ये इनको छोड़ रिलीज कर देती है। While exhaling, when negative thoughts come, declare in Jesus' name and release. और जब हम सांस को छोड़ते हैं तो यीशु के नाम में हम तमाम बातों को दूर कर देते हैं और अपने आप को एक तरीके से जीवन में शांति पाते हैं। In the name of Jesus Christ, I command you, all force of darkness, depart from me. यीशु के नाम में मैं तमाम अंधकार की शक्तियों के लिए प्रार्थना करता हूं कि ये सब मुझसे दूर हो जाएं। And second step is filling. और दूसरा भाग है भरना। When you inhale, fill with faith. जब आप सांस लेते हैं तो विश्वास से भरिए। And fill with the word. वचन से भरिए। And fill with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भरिए। Even physically, good oxygen refreshes the body. अगर हम देखेंगे तो अच्छा जो ऑक्सीजन होता है हमारे शरीर को ताजगी देता है। And spiritually, God's breath renews the mind. आत्मिक तौर से परमेश्वर का जो सांस होता है या परमेश्वर का जो वचन होता है वो हमारे मस्तिष्क को तरोताजा करता है। While inhaling, I'm praying to God, Lord, please fill me with your spirit and your power. जब हम सांस लेते हैं तो हम उस समय प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप मुझे अपने सामर्थ अपने वचन से भर दीजिए। Yeah, and then you can third step is stopping this pause. Hold. तीसरा चरण है रुकना
अर्थात थोड़े समय के लिए रुकना। After inhaling and exhaling deeply, pause briefly. सांस लेने और छोड़ने के बाद थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। Yeah. In the whole time, uh, we can ask to God to receive, to give us 5 powers. और उस समय हम परमेश्वर से, इसी बीच में हम परमेश्वर से कह सकते हैं कि प्रभु आप मुझे 5 सामर्थ्यों से भर दीजिए, to save all nations. हमारे राष्ट्र को बचा। Yeah. In that stillness, spirit, mind, and body alive. और ऐसे परिस्थिति में आत्मा, देह और मस्तिष्क जीवित रहता है। And concentration grows. और फिर हमारा जो मनन करने की शक्ति है वो बढ़ती रहती है। Healing begins. चंगाई शुरू होती है। In this generation, children are addicted to screens. आज की पीढ़ी की अगर बात करें तो आज लोग स्क्रीन से ग्रसित हो गए हैं। Attention is fragmented. और उनका ध्यान बहुत कम हो गया है। In addition, stress is high. और इसके कारण लोगों के जीवन में जो है चिंताएं बढ़ गई हैं। So, our pastors must first model rain, restoring rhythm. इसीलिए हमारे जो पासवान हैं उन्हें इन चीजों में एक खुद नमूना पहले बनना है। Yeah. For example, for 4 seconds, inhale. उदाहरण के लिए कुछ समय के लिए हम सांस को लेते हैं And hold 7 seconds. और 7 सेकंड के लिए इसको रोक दीजिए And exhale 8 seconds. और फिर 8 सेकंड के लिए इसको छोड़ दीजिए। While inhale, dear Lord, please give me the feeling of the Holy Spirit. जब हम सांस लेते हैं तो प्रभु से कहिए कि हे प्रभु हमें पवित्र आत्मा से भर दीजिए। While holding, Lord, give me 5 powers to save the world. और जब हम थोड़ी देर सेकंड के लिए रुक जाते हैं तो प्रभु से कहें प्रभु मुझे उन 5 सामर्थ्यों को दीजिए ताकि मैं दुनिया को बचा सकूं। And exhaling, Lord, please, your kingdom come upon me and my disciples. और सांस छोड़ते समय हम कहें कि हे प्रभु आपका राज्य मुझ पर और मेरे शिष्यों पर आने वाला हो। In the name of Jesus Christ, I command the all forces of darkness be bound. यीशु के नाम में मैं तमाम अंधकार की शक्तियों को दूर भगाता हूं। Okay, it's so good. Yeah, every morning I'm practicing this. ओह बहुत अच्छा है, हर सुबह मैं अभ्यास कर रहा हूं। It's प्रेज द good. लॉर्ड। Yeah, it's good for your prayer and attention and concentration. ये आपकी प्रार्थना और ध्यान केंद्रित करने के लिए बहुत अच्छा है। And you can revive your brain and you can focus on the prayer. और इस प्रकार से आप अपने मस्तिष्क को रिवाइव कर सकते हैं और प्रार्थना पे अपना ध्यान दे सकते हैं। Yeah. प्रेज द लॉर्ड। Then third vessel is saving the body for physical power. तीसरा जो बर्तन है वो है शरीर को बचाना, जिसे हम शारीरिक ताकत Especially as our spiritual leaders like us must care for our bodies. विशेषकर
हम जो आत्मिक अगुवे हैं, हमें अपने शरीर की चिंता करनी है। Balance is key. हम्म? Balance is और the key. Yeah. और इसका बैलेंस बनाए रखना मुख्य बात है। There are three balances: और 3 बैलेंस हैं। nutrition, exercise, rest. अच्छा भोजन, व्यायाम और आराम। Yes, food matters, और दोनों के दोनों हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं। but remember, Matthew chapter 4, verse 4, Jesus said, हम्म। और याद रखिए, मत्ती 4:4 में यीशु ने कहा, man shall not live by bread alone. मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहेगा। Yeah, so the word of God is greater nutrition. इसलिए परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। When extremely tired, I listen to the word deeply. जब मैं बहुत थक जाता हूं तो मैं परमेश्वर के वचन को बड़ी गहराई से सुनता हूं। Sometimes the body is restored more by grace than by sleep. और कई बार जब जो शरीर थक जाता है तो मैं इसको लेट कर आराम कर देता हूं। Yeah, but food is also matter. इसीलिए जो हमारी शरीर है वो बहुत महत्वपूर्ण है। There is food uh, that fits you, भोजन है जो हमें अच्छा लगता है। and also uh, let us do exercise, और आइए हम कुछ अभ्यास करें। walking, stretching, or right running. अ, पैदल चलें, अपने शरीर को आजू हाथ भाव को इधर उधर करें और कुछ हल्का फुल्का दौड़ें। Stretching is especially important for older pastors. और जो पास्टर लोग हैं जिनका पेट आगे आ गया है उनको एक्सरसाइज करना जरूरी है। Every night before sleeping, I'm doing stretching with prayer and deep breathing. और बता रहे हैं कि जब सोने से पहले मैं कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइज करता हूं और गहरी प्रार्थना लेकर प्रार्थना करता हूं, गहरी सांस लेकर प्रार्थना करता हूं। And sometimes I'm walking. कई बार मैं पैदल भी चलता हूं। Yeah. Movement activates vitality. और जो हम जब हम चलते हैं ना तो हमारे शरीर में ये बहुत ही अच्छे मूवमेंट देता है और ये हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत भी बन जाता है, तो ये बहुत जरूरी है। And also we need rest. हाँ, ये सब चीज तो हो गया, अब थोड़ा So आराम भी करना है। yeah, rest is not endless scrolling. अब जो आराम है वो ये नहीं है कि आप करते ही रहो। True rest is sleep, nature walk, breathing, आ, सच्चा आराम मतलब सही आराम जो है, काम करने के लिए हमें रेस्ट भी लेना है। and quiet cooking is also good. अच्छी भोजन बनाना भी अच्छी बात है। For me, I like cooking. अगर मेरी बात करेंगे तो मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। There's वाह। good, there's good rest. और वो मुझे जब खाना बनाता हूँ तो बहुत आराम मिलता है। And also, looking at the mountain, we can enjoy silence. और पर्वतों की ओर जब नजर लगाते हैं तो हमें शांति का एहसास होता है। Yeah, fishing is also good. मछली पकड़ना भी अच्छा है। Yeah, anything else, you can choose your rest. और जो कुछ अच्छा है जहां आपको आराम मिल सकता है आप वो चुन सकते हैं। Remember this, without rest, ministry becomes mechanical. और इस बात को याद रखें कि बिना आराम के सेवकाई अच्छे से नहीं हो पाएगी। Yeah, and let's move on to fourth vessel. आइए हम चौथे बर्तन की ओर चलें।
saving the work for काम को economic सुरक्षित रखना, power. Yeah. जिसे हम कहते हैं आर्थिक ताकत। We must understand economic flow. हमें आर्थिक बात को भी समझना है। Yeah, the future is moving toward पर जो भविष्य है उसके आगे चल रहा है। for what? इसलिए AI-centered systems, एआई केंद्रित सिस्टम, robotics, हाँ, रोबोट्स का जमाना आ रहा है, bio and life extension industries, और बायो इंडस्ट्री का जमाना है, and also 24-hour systems 24 घंटे सिस्टम्स हैं, and personalized services. और व्यक्तिगत सेवाएं। So, pastors should not be ignorant of economic trends. पासवानों को विशेषकर जो आर्थिक बात है, इससे कभी भी अज्ञान नहीं रहना है। So, we should study, हमें अध्ययन करना है, take notes, नोट लिखना है, design your future. अपने भविष्य को डिजाइन कीजिए। So, make a study notebook अध्ययन करते समय नोट बनाइए, and edit, design, record trends. और जो भी है उसको आप ध्यान पूर्वक रिकॉर्ड बनाते हुए आगे बढ़ें, And plan concretely. और सही से योजना बनाइए। And also teach financial stewardship. और इसीलिए अपने लोगों को आर्थिक भंडारीपन के बारे में भी बताइए। 4-count system is very important. और जो चार लेखा जोखा का जो सिद्धांत है वो बहुत जरूरी है। 30% is for offering and charity. 30% जो है वो दान और चैरिटी के काम करने का है, And 30% savings and education for our children. और 30% हमारे सेविंग है जो बच्चों की शिक्षा के लिए है, And 30% for living expenses. और 30% हमारे जीवन यापन करने के लिए खर्चा करना है, And 10% is for emergency fund. और 10% जब कभी मुश्किल आ जाती है तो उसके लिए हमें रखना है। Economic order brings stability. Stability supports mission. अगर हम अपने पैसे का लेखा जोखा सही से करते हैं तो हमारे सेवा काल में स्थिरता को लेकर आता है। Yeah, we must become the model of the economic life for missions to our members. और अपने सदस्यों के द्वारा हमें एक सही आर्थिक व्यक्ति बनना है। And the last step is for saving people, we need manpower. और आखिरी जो बर्तन है वो ये है लोगों को बचाना, अर्थात मनुष्य की पावर। So we should live the life of evangelist. हाँ, हमें एक सेवक का जीवन जीना है। This is the ultimate goal. Ultimate goal. ये हम सबका एक आखिरी लक्ष्य है। So make daily rhythm. इसलिए रोज पढ़ें, Today's word, today's prayer, today's evangelism. इसलिए रोज अभ्यास करें, रोज का वचन, आज का वचन, आज की प्रार्थना और आज का सुसमाचार। Even one conversation with covenant consciousness can change eternity. एक बात भी आपके जीवन में जो होती है वो आपके अनंतता को बदल सकती है। Evangelism is giving fundamental answers to fundamental problems. सुसमाचार जो होता है वो हमारी मूलभूत समस्याओं का समाधान हमको बताता है।
Okay, let's move on to conclusion. आइए निष्कर्ष की ओर जाएं। Build the watchtower of prayer. आइए हम प्रार्थना के वॉच टावर बन जाएं। 3 concentration times daily. दिन प्रतिदिन 3 मनन का समय रखें। At the dawn, you please have summit time. और सुबह में आप एक समर्पण का समय रखिए। 5 a.m. Build 5 vessels. Receive 5 hours. 5 बजे 5 बर्तनों को तैयार करें और 5 सामर्थ्यों को प्राप्त करें। And daytime, have field worship. और दिन में सेवकाई जहां फील्ड आराधना का आनंद लीजिए। In office, school, village, and workplace, let's have worship in heart. चाहे आप स्कूल में हो, गांव में हो, कहीं भी क्यों न हो, अपने मन में एक आराधना का मन रखिए। Read the word daily. प्रतिदिन वचन को पढ़िए। And also you can listen to the daily devotional. और प्रतिदिन के मनन को भी आप सुन सकते हैं। And draw your evangelism map. और अपना सुसमाचार के लिए एक नक्शा बनाइए। When you draw consistently, you see God's guidance clearly. और जब आप इसको निरंतर नक्शे को बनाते हैं तो फिर आप परमेश्वर के मार्गदर्शन को अपने जीवन में देखते हैं। And night, have daily worship. रात को प्रतिदिन आराधना कीजिए। Participate in worship of your church with your members. अपने विश्वासियों के साथ अपनी कलीसिया में भाग लीजिए। Let your church members participate in every night worship. आइए अपने कलीसिया के विश्वासियों को रात की आराधना में भाग लेने दीजिए। For me, I have family worship, family service with my members every night. और मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे प्रति रात को अपने परिवार और कलीसिया के सदस्यों के साथ फैमिली प्रेयर होती है। Through online. ऑनलाइन के द्वारा। Yeah, it is easier, good. और ये अच्छा है। Yeah, you can utilize. Yeah. आप इसका लाभ उठा सकते हैं। Yeah. Do not be Sunday Christians. केवल रविवार के मसीह मत बनिए। Yeah. We should make everyday Christians. हमें प्रतिदिन का विश्वासी बनना है। Yeah. And also write 3 lines in a diary before sleep. और सोने से पहले 3 लाइन कम से कम अपनी डायरी पे लिखिए। Today's Thanksgiving. आज का धन्यवाद का विषय। Today's answer. आज का उत्तर। And for tomorrow, today's plan. और कल की योजना आज बनाएं। You can write today's word, prayer and evangelism. You can receive answers. और आप इसको लिख सकते हैं आज की प्रार्थना, आज का सुसमाचार और right answers. और सही उत्तर। 3 line diary. Yeah. और 3 लाइन आप इसको लिख सकते हैं। And stretch and pray healing prayer. और फिर अपने आप को थोड़ा स्ट्रेच कीजिए और फिर चंगाई की प्रार्थना कीजिए। And then you can sleep deeply in peace. फिर आप आराम से गहराई से सांस लेकर सो सकते हैं। Yeah, pastors of India, if you feel weak, start this. भारत के पासवानों, अगर आप अपने आप को कमजोर महसूस करते हो तो इसको शुरू करो। If you feel poor, start this. अगर आप को लगता है कि हमारे जीवन में कमजोरी है तो आप इसको शुरू कीजिए। If you feel limited, start this. अगर आप सोचते हैं कि आप सीमित हैं तो इसको शुरू कीजिए। Your life can change. आपका जीवन बदल सकता है। Let's build the watchtower of prayer. आइए हम
अपने जीवन के द्वारा प्रार्थना का टावर बनाए। Uh, let us gather at dawn, even online, as a Summit Club with your members. आइए हम सुबह की प्रार्थना करें और रात को हम अपने विश्वासियों के साथ इकट्ठा हों। I'm so excited with this Summit Club. और मैं इस समी क्लब से बहुत ही उत्साहित हूँ। I'm look forward to the tomorrow's Summit Club every day. और मैं कल के समी क्लब को भी इंतजार कर रहा हूँ I'm so happy because of that. और उसके कारण मैं बहुत आनंदित हूँ। Yeah, we may not be many, हो सकता है हम ज्यादा लोग ना हो, but God works लेकिन through परमेश्वर prepared काम करता है। best vessels. परमेश्वर काम करता है अच्छा बर्तन तैयार करने के लिए। Let's pray. दुआ करेंगे। Heavenly Father, thank you for beginning answers. धन्यवाद प्रभु हमारे उत्तर देने के लिए। Help us prepare the vessel. मदद कर प्रभु कि हम बर्तनों को तैयार कर सकें। Please establish the Summit Club in our church. मदद कर प्रभु कि हम अपनी कलीसियाओं में समिट क्लब स्थापित कर सकें। Raise spiritual summites who will save India and the world. और प्रभु मदद कर कि आत्मिक समिट क्लब शुरू हो सकें जो भारत और दुनिया को बचा सकें। Let's build the watchtower of prayer like Jesus. आइए यीशु के समान हम प्रार्थना टावर को बनाए। At dawn, in the field, and night. सुबह या रात जो भी हो। In the name of Jesus Christ, our martyr, we pray. यीशु मसीह के नाम से जो हमारा नमूना है प्रार्थना करते हैं। आमीन। Amen. Amen. Yeah, let's take a Thank you. break. Thank you.